मैं जिम से निकलता हूँ, मेरी कोई फोटो नहीं खींचता, मैं ना किसी को बुलाता हूँ कि आओ मेरी फोटो खींचो। जनित में जारी एक्टर सीन वर्किंग आउट, कुछ तो है जो भाभियां पसंद कर रही हैं। तो मैं पूरे देश की भाभियों तक अपनी रीच पहुंचाना चाहता हूँ। So you know there's a lot So, of Bhabis, if you're listening, you have to. भाभीज love me भाभीज, I love you भाभी, I hope you love me too. यार ये इंडस्ट्री इतनी ब्रूटल है ना कि आपको ये बताती भी नहीं है कि आप रिजेक्टेड हो। कई बार आप 6-6 महीने तक यही वेट कर रहे होते कि ऑडिशन उसने बोला तो बहुत अच्छा गया। हाँ। मैं मेरे दोस्त को बोला एक्स फैक्टर, क्या बोले मैं मेरी एक्स की बातें ही नहीं करता अब। मैं भी भूल गया, तू भी भूल जा। हमें ठंडा खाना नहीं पसंद, हम ठंडे हीरो कैसे देख सकते हैं? Actually. हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन अड्डा अनफिल्टर्ड। आज जो मेरे साथ कॉफी टेबल पे हैं वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देने वाले हैं। वाह, क्योंकि मैम ने रिसर्च नहीं की। नहीं, हाय, एवरीथिंग इज योर। श्योर। हाय, माय नेम इज अनुज सिंह ढाका, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। I came to Bombay about 10 to 11 years ago. I have studied in St. Xavier's College. मैं एक एक्टर हूँ। That means मैं मोस्टली आराम नगर पार्ट 2 पार्ट 1 में ऑडिशन करता हुआ मिल सकता हूँ, पाया जाता हूँ। मैं वो प्राणी हूँ। If you recognize me by now, then you are probably aware of my work. But if you don't, then I started my acting journey with this film called Super 30 and Chichore. In both the films, मैं background actor था. Would you like to tell them what background actors do? That background actor like a second lead? No, second lead are different. So what background actors are कि आपका एक सीन चल रहा है जिसमें दो मेन किरदार सामने रहते हैं और एक बैकग्राउंड में ना पासिंग के लिए किसी को रखा जाता है, the junior artist. Oh, so he started his journey as a junior artist. Pretty much. But you look too good to be a junior artist. Ma'am, there are plenty good looking junior artists. ये तो हम इस डिसेप्शन में तो रह ही नहीं सकते. But yeah, that's where my journey began. I then did a Netflix original. Well, that's fine. It's a cafe, so it happens. Yeah. The same happened last time also. The episode which I just told you. So, yeah, quickly completing my introduction. I have a show on Netflix. It's called Taj Mahal 1989. I have a show on. I like doing that. I've done my research. I've seen all your work. Sure. Plus, everything is there online. I believe and I've seen a couple of interviews also. Okay. Oh, okay. And then I made my film debut with this film called Janhit Mein Jari. I was very, very, very lucky to be given this opportunity by Mr. Raj Shandilya and my director, Mr. Jay. And I was opposite Nusrat Bharucha. Yeah, and what else have I done? I have a film that has just come out on Z5 called Once Upon Two Times. Yeah, Once Upon Two Times. Two Times. That also I saw the trailer and those two songs also. अरे बहुत सुंदर गाने हैं. हाँ, गाने बहुत प्यारे हैं, देखे मैंने. So what next is there? What is next? The one which you were shooting for yesterday, you told me. So there are two upcoming projects. One I'm not allowed to talk about as yet, which I begin shooting next month. Apart from that, I've just finished shooting a very beautiful show called Sarpanch Sahab. Sarpanch Sahab, which is for TV? It's for an OTT. And what about that Barrister Babu? Barrister Babu? उसमें भी आप हैं क्या? नहीं, क्या है Barrister Babu? This is a TV serial, I guess. मैं रिसर्च जब कर रही थी ना उसमें कहीं आपका नाम उसमें अनुज सिंह करके था. I thought maybe you've done this also. नहीं, I have not had the. Must be some another Anuj Singh then. हो ही नहीं सकता. I don't know who was that. अनुज सिंह तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक है. And Dhaka? Anuj Singh Dhaka. But tell me one thing, Dhaka means like, have you all migrated the forefathers from Dhaka? Yeah, so what happened is we were born in now Bangladesh and we come from the ruling class, the warriors, aristocrats and वहाँ के राजा महाराजा types. But life happened, people migrate, हर राजा. But you are a Bengali? I mean, ancestors. तब होते थे. हाँ. So they moved out and वो उनके ऑनर में, so they today बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका, in my family's honor it was started
Great. Yeah. So, but like your father or your grandfather, they used to speak Bengali? No. My grandfather did at times, Okay. but then we eventually realized he's just sleep talking. So you all have relatives Guys, that I'm not from Bangladesh. Oh God, कुछ भी बैठ के बोलो, people will just believe you apparently. नहीं यार, मैं बंगाल से नहीं हूँ. मेरे परिवार, मेरे जो दादाजी हैं वो यूपी से माइग्रेट किए थे भोपाल में. Okay. मैं भोपाल में पला But बड़ा. where does the Dhaka comes from? ढाका is a गोत्र. Gotra. तो Okay. if you want to ask my caste, मैं जाट हूँ, पढ़ा लिखा जाट हूँ, तो मैंने ये देखो बिल्कुल पूरा बंगाली बेचा अभी. हाँ, तो मैंने जाट बिल को साथ दबा दिया, तो लोग पहचान नहीं पाते, तू कैसा जाट है यार. पर भाई मैं जाट हूँ. तो मुझे पता नहीं था. I thought I was हाँ, एंड जो ढाका है तो हम लोगों में गोत्र हुआ करे, तो ऐसे जैसे चौधरी हो गए, ढाका हो गए, हर्षवाल हो गए. हम गौतम हैं. हाँ, बढ़िया है आप जो भी हैं. भाई साहब वत्स हैं. हाँ, तुम जैसी भी हो मंजूर हो. So हमारे ऑडियंस को पहले हमारा शो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बोल दीजिए. So that Yes, please. भाई they ये like you as well. बड़े झमेले हैं. I know as an audience you're very smart. Whatever you like, you like. Whatever you really like, you share. And whatever you love, you subscribe. So I hope all these 3 boxes are ticked for you as an audience, so that you like it, you share it, and you subscribe. And you comment for him as well. Arey, Or if in case you want, you can comment for me also. please, comment for the both of us. Please tell us if you enjoyed a Taking it conversation. further, हाँ जी. जैसा कि आपने कहा, मैं आराम नगर का वो एक्टर हूँ जो ऑडिशन देता रहता हूँ, तो अब तो जरूरत नहीं पड़ती होगी. नाउ तो योर प्रोफाइल इज देयर ऑनलाइन एवरीवेयर. जी, टू बी ऑनेस्ट, बहुत जरूरत पड़ती है. अभी भी मैं अभी भी आराम नगर जाता हूँ. आई मीन आई स्टिल रिमेम्बर ताजमहल. सो स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि शायद ऐसा होगा. बैक देन व्हेन हैविंग अ शो ऑन नेटफ्लिक्स यूज्ड टू बी अ वेरी बिग डील इज व्हेन माय शो केम आउट. बट मेरा आज शो आया in a week, there were good reviews, everybody in the industry was talking about me, but I was back in Aram Nagar, and to be honest, I'm at a place today where I do not mind auditioning, because when you audition, it's a kind of prep, I guess. I mean, preparation Every time begins once the audition. I think auditions are primarily for the director to see that character in you, or to also probably see the possibility of bringing that character to life through you. So you are a medium for him. What also happens for me is कि the minute I've auditioned for something and I've gotten, आज तक मुझे जुगाड़ से तो कुछ काम मिला नहीं, क्योंकि है ही नहीं, है ना. तो उसमें ना ओनरशिप बराबरी की हो जाती है. Like there are days on set, and I'm saying this, there are days on set which are difficult days. There are days on set which, when as an actor you're clueless about the choices. There will be days जब मेरे को लगेगा यार इस सीन को तो ना मैं ये ऐसे कर सकता हूँ. Then there are days where you're like, what is that right approach that I should take? And this is where you start questioning yourself. अगर आप जुगाड़ से लगे होते हो कि यार मेरे पापा ने पिक्चर तो दिलवा दी, अब नाम डूब रहा है, सेट पे 10 लोग बेइज्जती करेंगे, क्या सोचेंगे, 50 चीजें. But when you have that shared relationship with your director, when you have that shared ownership कि okay अनुद, I see कि तूने ये ऐसे ऑडिशन किया था, उसमें मुझे एक आपकी रेंज मैं अज्यूम कर रहा हूँ, and I'm willing to work with you. So then I can also approach the director with my problems कि सर ये नहीं आ रहा, मिलके निकालते हैं ना. But the minute there is that, एक तो मिडिल क्लास आदमी ना, एहसान किसी का नहीं लेना है भाई. तो the minute there is this एहसान की, अरे तू आ जा बिना ऑडिशन के, तो आप घबराहट के उसके पास नहीं जा रहे यार. मैंने उसको निकालना नहीं या कुछ बोलना नहीं. हाँ नहीं, कि मैंने उसको अपनी कमजोरी दिखा दी तो वो मुझ में डिसअपॉइंट ही ना हो जाए कि मैंने किस गधे को घोड़े की रेस में दौड़ा दिया. You know, so I'm very happy auditioning, and I do not wish कि वो कभी भी एंड हो कि अरे ऑडिशन नहीं करने पड़ रहे. So what is the life of like, I won't say it for you, but then otherwise जो आराम नगर के जो struggling actors है, उनकी लाइफ का रूटीन डे कैसा होता है और कितना मुश्किल होता है, अब वो ऑडियंस would like to See, know. personally for an actor, I think it's a lot. I mean, in my assumption, it's a lot of personal growth. Yeah, you do not just. I mean, there are people. It's like a grooming, you say. सिर्फ grooming की बात नहीं होती. As an actor. हाँ, I mean, there can be an actor standing in the middle of a mall and just probably observing people. You know, ये इतना you have to be a sponge, is what I believe. Is that's why they stand out in the crowd? Probably. I mean, how much you can connect, how much you can empathize, how much you can look into somebody's eyes, and you know, I always ask myself this question, and some of my friends were like, "मैं मेरी ये range है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ." मैंने कहा, very good, but is acting only about expressing, or is it also about hiding?
हाइडिंग है ना, कि यार वो बड़ा खुश है यार, नहीं भाई वो दुख छुपा रहा है, दुख छुपा रहा हैं? है, that people won't understand. हाँ यार वो कितना दुखी है, एक्टिंग कर रहा है, so what are you doing, you're masking an emotion. हाँ. Now most of the actors that I have met, most of my people that I know, for them it's just about express. नहीं, थोड़ा रख भी तो अपने पास, Subtle. So now I have never been to any acting school, तो मुझे नहीं पता कि एक्टिंग स्कूल्स में क्या सिखाते हैं. So what made you decide to become an actor? You had the looks, so you thought कि चलो. I still do not feel, please, I'll look into the camera so that my eyes are captured and people realize that I'm being super honest. I still do not feel I'm a very good looking boy or a man. Though when I was a kid I used to think कि वाह मेरी कितनी flawless skin है, मैं तो हीरो बनना चाहिए, फिर मुझको चिकन पॉक्स हो गया तो मेरा वो बबल भी बर्स्ट हो गया एकदम से. So you want to tell your audience that you're not good looking? I really feel that I'm not a very good looking man. So this is how you're selling yourself. वही वाली बात है. How is this me selling myself? Probably, seriously, I've never had this bubble about myself. I'll share this with you. Long back, I had participated. Like I was amongst the top 30, but then बाद में semi-final तक भी नहीं पहुंच पाई थी. तो मैं grooming trainer के पास गई थी. अच्छा. Miss India participation से पहले. जी. Couldn't make it, but I had gone to this guy. I'll not take his name. So थोड़ा बहुत एक 15 days का workshop वो करते थे models के लिए. That time I was a ramp model. तो उन्होंने मुझे पहली चीज क्या बताई कि जब आप मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए किसी भी इस तरह के कॉन्टेस्ट के लिए जा रहे हो जहाँ पे आपको विन करना है, so you have to feel that crown on your head all the time. आप पानी पी रहे हो तो आप क्राउन के साथ हो, आप पॉटी पे भी बैठे हो तो you feel like a Miss India. When you feel it, na, then only the poise comes in you. Like if you feel that you're the most handsome dude on this planet, that will come. If you think, हाँ ठीक है, मैं भी one of them, तो वो जो आपके अंदर फीलिंग होती है, आई थिंक वो फेस पर दिखता है. अब हो सकता है मेरी अप्रोच रॉन्ग हो. व्हाट इज योर टेक इन दिस? करेक्ट. सी हेवी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन, है ना. आप बोझ चले तो दबते हो, भले ही आपने वो क्राउन पहना हुआ है, बट इट्स जस्ट अ फील. इट्स करेक्ट. एंड दूसरा ये है कि for me being an actor is not about separating myself from the crowd, और मैं पिरामिड के टॉप पे अकेला रहना चाहता हूँ, मैं सबसे बड़ा, मैं सारी दुनिया का मालिक. 300 रुपए की टिकट खरीद के आपको कोई देखने जाएगा तो उनको एक स्पेशल बंदा देखना है ना. नहीं है, मैं उनको, अगर आप कुछ अलग भलता ही देखने आए हैं तो मैं शायद वो इंसान नहीं हूँ, पर अगर आप किसी अपने को देखने आए हैं तो मैं बहुत हूँ. मैं अपना जो अच्छा दिखता है, जो अच्छा फील करता है, जो स्पेशल है. For me also, you have to realize, for me looks have never been a priority. I mean, there are many good looking people in the industry who are not getting work, and there are many people in the industry who I remember a director of mine cast me for something and he's like, I wanted a boy जिसको वो अगर सड़क पे चल रहा हो तो लड़की पलट के भी ना देखे, ऐसा. and I was locked for it. Okay. Now any actor would take off and go, what do you mean? But मेरे लिए वो शायद USP है. That is probably something that I am one of them. I am one of them. Why? मैं उनका बंदा हूँ. मैं हूँ. Like मैं कैसे सेपरेट हो गया just because मैंने बचपन में सोच लिया मैं एक्टर हूँ. मैं I'm not here for glamour. I'm not here for big cars. I'm not here to separate myself from the crowd. I'm here probably to somehow convince them कि यार मुझे ना थोड़ा और प्यार दे दो. I want to be loved by you a little more. So मैं तुम्हारा ही हूँ यार. देखो, और अपनों से तो सब बहुत प्यार करते हैं. So you have to love me a little. So you came to Mumbai to become an actor. हाँ जी. प्यार की तलाश में, पैसे की तलाश में, या अपने पैशन की तलाश? सब कुछ. क्योंकि प्यार मुझे ऐसा लगता है जितना दिया जाए और जितना लिया जाए बहुत कम है, कभी पूरा नहीं पड़ेगा. पैसे से मैं आता नहीं, यानी माय फैमिली इज नॉट वेरी रिच, आई एम स्टिल नॉट वेरी रिच, सो प्रोबब्ली टू मेक मनी इज डेफिनेटली अ गोल. और passion I think is such an overused word. I can still be passionate about so many things and not make it into my career. Like I'm a passionate skydiver. I'm a licensed skydiver, so I jump from the planes. But now I'm not a skydiving instructor. I do not have a skydiving school. I do not aspire to do any of those things. But I'm passionate about it. I go, I taste it, I like it, I enjoy it, and I leave it at that. Acting was something that was making me not doing it. That was making me restless. That was making me feel like कि यार मेरा एक purpose है जो मैं शायद fulfill नहीं कर पा रहा हूँ. And my previous interviews also I've said कि I tried my level best to not be an actor. मुझे ये लगता था यार कि वो सब यही सोचेंगे छोटे शहर भोपाल से मुंह उठा के लड़का आ गया सोच रहा है हीरो बनेगा. तो एक
आप शर्माते हो ना लोगों से, यहाँ पे बॉम्बे में आके आपको सब ऐसा लगता है कि ये तो सभी हमसे ज्यादा डिजर्विंग है, सभी हमसे बेटर घर से आते हैं, एवरीबडी, if they don't probably deserve it, then how do I deserve it? मेरे पास तो ये सब भी नहीं है. I do not have the education that these people have had. I do not have the accessibility to places and people that these people have had. And if they are struggling, then how will I make it? So you get into all of those. So you're like कि ठीक है, मैं इंडस्ट्री से बहुत प्यार करता हूँ. What I'll do is मैं यहीं पे कुछ काम कर लूंगा. So acting is your passion or no? It Yeah, is. definitely is. There is You love your nothing work? else that I can do. You love your work. I love my It's work. very important. Yeah. So I'll share this with you. The other day I was speaking to a friend of mine who told me, मैंने बोला कि तू क्यों आया इधर एक्टर बनने? तो बोलता है यार बंदियां अच्छी नहीं मिलती अपने वहाँ पे. तो मैंने सोचा कि मैं किसी हीरोइन से शादी करूंगा. इससे आपका क्या टेक है? तू तो हीरोइन से शादी कर ले. हीरोइन तुझसे शादी करेगी कि नहीं, उससे तो पूछ ले. हीरोइन से इस शादी देश के मर्द कंसेंट क्यों नहीं समझ रहे हैं यार? हीरोइन से शादी करने के लिए अगला बंदा इधर एक्टर बनने आया है. बिल्कुल, बोलो. सबके अपने अपने पर्पसेस होते हैं. आपको- फॉर ऑल यू नो कि वो कर भी ले. आपको नहीं करनी है. क्या हीरोइन से शादी? हाँ. मुझे बिल्कुल शादी करनी है, पर कब करूं, किससे करूं, कहां से लाऊं? You don't flirt? Of course I flirt. You do? How do you approach a How will I survive if I don't girl? flirt? किसी पार्टी में जाते हो या किसी गेट टुगेदर पे जाते हो, if you have to approach a girl, सबसे पहले कैसे मतलब फ्लर्ट करने का क्या आपका स्टाइल रहता है? टिप नंबर 1 to 3. टिप नंबर 1 2 3 इज डोंट बी लाइक मी. बिकॉज मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा अरे ये तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सब कुछ हो, और फिर उस डर में मैं सहम जाता हूँ. फिर मैं बोलता अरे छोड़ यार, इसके बिना भी तो अभी तक जिंदगी चली रही थी, आगे भी चला लेंगे. बट व्हाट आई हैव क्रैक्ड दिस, आई थिंक यू शुड जस्ट गो टेल हर कि for some reason I've really been unable to look at anything else in the room. Okay. And even when I try, Dialogue. automatically मेरी गर्दन घूम 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 के आपके पास ही आके अटक रही है. So, जिसके पहले मैं घूर घूर के आपको creep out कर दूं, I just wanted to come up to you, tell you that I would probably want to meet you, get to know you, and be the man that you like. And then Help me become the man that you like if I'm not the man already. step 2. ये सारे स्टेप हो गए ना ये. अच्छा. हाँ, फिर वो उसके बाद अगर वो चाटा मार दे बोले whatever, तो भाई पीछे मत जाओ, किसी को तंग मत करो. Stalking is not okay, harassing people is not okay. And if she's like okay, then sure, why If not? she says okay, let's go, then where do you take her? Then you plan Dinner and all. The then same day, the then- other day, you plan I think the thing is we assume too much and ask too less. I think if हाँ. you ask the other person, you will get all the answers. So better. like Point. like if I'll ask you, so are you a tea person or a coffee person? In the morning I take coffee, in the evening I take tea. So if I'm ना meeting चाय her, नाराज हो ना कॉफी बुरा माने. wow. So if I'm taking her out on a date and if it's supposed to be in the morning, I'll make sure it's a nice coffee place. And in the evening, if I'm meeting her, then I'll make sure कि वहाँ पे अच्छी कुल्हड़ वाली चाय मिलती है. So that's the approach. He goes and asks the girl कि उसको क्या करना है, उसको क्या पसंद है, and this is a tip for you guys. Thank you. Looks great. Thank you. Thank you. Thank you, buddy. Thank you, Akhil. इसमें डेयरी नहीं है ना? डेयरी प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है ना? दूध वगैरह चीज? हाँ, आलमंड मिल्क है ना? परफेक्ट. Thank you. Thank you. So हाँ, एंटी डिप्रेसेंट होता है किसी भी टाइप का, जैसे कि जब आप बोर हो रहे होते हैं या आपको थोड़ा डी स्ट्रेस करना होता है, तो आप क्या करते हो? आप कोई पेंटिंग बनाते हो क्या? ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज होना पसंद मैंने करते हो? इतनी एक्टिविटीज में हाथ डाला हुआ है ना आज के डेट में कि कभी कभी तो मेरे को डिप्रेशन इस चीज से आ जाता है कि अरे क्या क्या करूं? वो 2 महीने पहले चालू की थी, वो वहीं पड़ी है. तो You're too confused, man, or what? no, I think I've taken the fact कि you only live once very seriously. And मैं कहीं ना I'm still confused. I'll tell you what my biggest confusion is. My biggest confusion is if I'm here to be loved or if I'm here to love. Because I think मेरे को प्यार करना भी बहुत पसंद है. You know, I just love people. I love making friends. I love doing things for people. I'm like कितनी बार करते हैं अरे काम नहीं मिला. मैंने कहा मैं काम लेने ही नहीं आया हूँ. मैं तो you know I'm here to be here with my talent and I'm here to provide. I'm not here to take anything away. So and I feel you only live once, so everything that really excites you should be explored. What kind of music you like? I like I think I like everything. I don't like these EDMs and
But apart from that, I'm a Mohammed Rafi fan. I am a Mohammed Rafi I fan. I'm a Guru Dutt fan. मैं सुबह से शाम तक सुन सकती हूँ. Eventually my ये सब मैं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, and then eventually I'll end my day with ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है. Dichotomy of my life. कि सब कुछ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए. So you smoke? No, I don't. You drink? I don't. So what is the nasha which you do? What is your kick? ये ना मेरे साथ कई बार हुआ है कि एक टाइम पे तो मैं नॉनवेज भी नहीं खाता था, तो मेरे दोस्त क्या करते थे, भाई ढक्का ना तू नॉनवेज खाए, ना तू शराब पिया करे, है ना तू लड़की छेड़े. लड़की तो you said ना फ्लर्ट करता हूँ. वो छेड़ना और फ्लर्ट करना काम किस दिन छेड़ना हो क्या? ना तू लड़की छेड़े, तो किस बात का जाट है तू? मैं कहा नहीं भाई. हाँ जाट तो खैर वही रहे. हाँ जाट बदनाम है. जाटों से अच्छी मैं कह रहा हूँ, जाटों से अच्छी कौम कोई नहीं है. भाइयों के लिए खड़ा है जाट, देश के लिए खड़ा है जाट, किसानों के लिए खड़ा है जाट, औरतों के लिए खड़ा है जाट. औरतों के लिए तो डेफिनेटली खड़ा है. बिल्कुल हाँ. तो बेमतलब भाइयों को बदनाम कर रखा है. तो बट इट्स नॉट दैट कि मैंने देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई हैव ट्राइड अल्कोहल, देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई थॉट कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, शायद किसी को लगा भी हो कि छेड़ क्या रहा है मुझे, बट द इंटेंशन हैज नेवर बीन देयर. So, जिस पार्टी में मैं फर्स्ट टाइम आपको मिली थी, तो वहां मैंने देखा कि आप एक खोपचे में बैठे थे जी. जहाँ बहुत सारी भाभियों ने आपको घेर रखा था. अब कुछ तो करना चाहिए, इधर आप कुछ चुटकुले, कुछ शेरो शायरी कुछ तो सुना रहे थे और मैं ये सुन रही थी. मैंने कहा इतनी हंसी खिलखिलाहट ये कहाँ से आ रही है? देखा तो भाई साहब बीच में बैठे हुए थे. No, I'll tell you what. So it's your favorite time pass? It's not my time pass. So you believe it's in my it? endeavor. It's my love to keep खुशी people बांटना. entertainment. खुशी बांटना. You have to realize I come from a family जहाँ पे यार आदमी ना बच्चों से बात ही नहीं करते. So all your interaction is with your mother, with your aunt, with your sisters, है ना? Otherwise आदमी आप इंडिया में देखो पापा आ गए एकदम से घर का माहौल मायूस, छुप जाओ कि जैसे अरे बाप है तुम्हारा, रावण थोड़ी है कि मार ही डालेगा. पर एक डर का माहौल रहता है. So all your interaction is with your चाची, is with your बुआ, is with your sisters. So you know how to tackle that audience. You know how to keep them entertained, and that I think just translates into me being surrounded by bhabis and keeping them entertained. No, but I was wondering वहाँ पे दूसरे बंदे भी थे, बट सिर्फ बंदियों ने आपको घेर रखा था. बंदों को क्यों एंटरटेन करते? मतलब बंदों से दुश्मनी है क्या? बंदों से कोई दुश्मनी नहीं है यार, बंदे ही इनसिक्योर हो जाते हैं मुझसे. तो कनेक्शन नहीं हो पाता. अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मैं तो अपने आप को बहुत एवरेज समझता हूँ, मैं तो वन ऑफ यू हूँ, मैं तो आपका बंदा हूँ. तो बट इस बंदे को अंदर से बहुत घमंड है, मुझे पता है कि एक मास्क लेके बैठा है. आपको नहीं लगता कि मतलब मैं हूँ कुछ यार? यार if it has to come to it now, then I'm the greatest actor in the world. The world doesn't know it yet, but I am the greatest actor in the world. He said it. India has a lot of population, and everybody today. मैं भी तो वही लड़का था ना कि जिसने अपने शहर में बैठे बैठे सोचा कि यार मैं एक्टर बनूंगा. कांच के आगे नाच रहा है, बोले वाह क्या नाचता हूँ. 4 दोस्तों को एंटरटेन कर रहा है, कुछ भाभियों को हंसा रहा है, तो उसको लग रहा है कि अब मैं पूरी इंडिया की भाभियों को खुश कर सकता हूँ. भाभियों को हंसाने के बाद दिस गाय रियलाइज इस मासूम चेहरे के पीछे जो बंदा है कुछ तो है जो भाभियां पसंद कर रही हैं. तो मैं पूरे देश की भाभियों तक अपनी रीच पहुंचाना चाहता हूँ. So you know there's a lot of Bhabis, if you're listening, you have to. Bhabis love me, Bhabis. I love you, Bhabhi. I hope you love me too. Rejection कैसा हैंडल करते हैं ऑडिशन के बाद जब फाइनल हो जाते हैं? अच्छा आपको कॉल आता है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, एंड देन द अदर डे दे से नहीं द अदर गाय ना जो 2 सेलेक्ट हुए थे उसमें से वो हो गया, तुम नहीं हुए. तो अपने आप से सवाल पूछते हो कि क्या हुआ? यार ये इंडस्ट्री इतनी ब्रूटल है ना कि आपको ये बताती भी नहीं है कि आप रिजेक्टेड हो. कई बार आप 6-6 महीने तक यही वेट कर रहे होते कि ऑडिशन उसने बोला तो बहुत अच्छा गया, सिलेक्ट तो होगा. The one thing which I hate is like they give you hope. One should never give hope. मतलब हाँ तुम शॉर्टलिस्टेड हो, ठीक है, तुम नहीं हुए, रिजेक्ट हो गए, खत्म, बात वहीं पे खत्म करो. अगले बंदे को या बंदी को होप दे के आप बैठा के रखते हो कि हाँ भाई तुम्हारा काम होने वाला है. क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी one thing which is a bad karma, I guess. they bad karma से ज्यादा that is they being I've heard of producers, you know, जो एक्टर्स को बैठा के रखते हैं 1-1 साल, एंड देन वो बेचारे उसके बाद कहीं और भी काम नहीं कर रहे हैं, ये सोच के कि ये बेटर प्रोजेक्ट है. हुआ है? See? But it's not that easy to be an actor. It's not. It's very easy कि जाके आप किसी इंटरव्यू में जाइए, आपको नौकरी मिल जाती है, उसके बाद आप नौकरी करते ही जाते हैं, फिर आपका प्रमोशन होता है और प्रमोशन होता है, आप पैसे कमाते हैं. बट हियर इट्स लाइक एवरी डे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप रिजेक्ट हो रहे हैं, फिर भी उसके नेक्स्ट डे आप उसी करेज के साथ
कॉन्फिडेंस के साथ दूसरा ऑडिशन दे रहे हैं जो कि एज गुड एज इंटरव्यू क्योंकि होता और है, फिर option आप नहीं रिजेक्ट हो रहे हैं एंड उसके बाद जो आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं ना, दैट्स व्हाट यू नो एंड मुझे लगता है कहीं ना Makes you कहीं different. गॉड ऑल्सो ही लुक्स आफ्टर मी आई थिंक। और जब उनको लगता है कि ना बहुत उड़ेगा तो वो मेरे को जमीन पे भी ले आते आप 8 नंबर हो ना, you're मैं- 8 number Yeah, born. hi. I know that. Oh, okay. You told me. ओके So 8 number is the number of कर्मास. तो शनि देव का जो है वो रहता है, दंड देते हैं। अगर आप कुछ भी गलत कर्म करोगे ना तो आपको दंड सबसे पहले मिलेगा। नहीं नहीं क्योंकि जितने चहीते होते हैं शनि देव के 8 नंबर बॉन्स, उतना ही वो दंड भी देते हैं, क्योंकि 8 नंबर इज शनि। So he's like a strict parent. Yes. And I've always had strict parents. So I think मैं शनि देव जी की और मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, हनुमान जी की और मेरी भी काफी अच्छी है। मेरे पापा मुझे हर मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिर लेके जाते थे। सो आराम नगर में जो एक्टर्स ऑडिशन देने आते हैं, उनका रूटीन डे और कितना टफ स्ट्रगल सबका अलग अलग होता है होता यार। है, वो आप बताएं। एक एक्टर होता है जो यू नो ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली जिसके साथ परिवार सोच भी नहीं सकता बम्बई जाने की, और वो सब कुछ ट्राई कर चुका होता है। वो सोचता है मैं नौकरी कर लूँ, वो सोचता है मैं पढ़ाई कर लूँ कि मेरा परिवार नहीं मानेंगे, और वो हर उस जद्दोजहद से गुजरता, फिर वो कहता है नहीं यार मुझे एक्टिंग एक बार तो करनी है, जिंदगी मुझे एक बार मिलती है। फिर वो यहाँ आता है, 5-6 लोगों के साथ रहता है, क्योंकि यहाँ पे रहने की जगह इतनी महंगी है। ये कहते हैं जो अपने डैडी आई वांट टू बी एन एक्टर डैडी, there is no way I can't live without acting daddy, so can you make a few calls and I want to move to LA. I'm like LA उत्तर तू बॉम्बे जा LA. So then he comes down to Bombay, then he rents a flat in Bandra, he chills with everybody that people like me can't even imagine having access to, and then probably because he's talented he'll get a lot of work, or probably because he's not that talented and he was probably delusioned about himself, he sticks around. Then daddy's like तू चल producer ही बन जा, और then daddy's like चल तू ये कर ले, चल तू वो कर ले, So he'll produce a film for and himself. then I don't know, then he has that circle. So सबकी एक life अलग अलग है, and both are very respectable lives. And then there's an actor. See, you have to realize ये जो हमारा नेपोटिज्म का डिबेट है, जो हमारा आउटसाइडर्स का डिबेट है, बड़े ही रिडंडेंट डिबेट्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे कैमरे के सामने आपकी सच्चाई आ जाती है निकल के, है ना। अगर आप बहुत टैलेंटेड हो, आप कैमरे के सामने परफॉर्म कर रहे हो, अच्छी बात है। अगर आप टैलेंटेड ही नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है कि आप बड़े खानदान से हो, छोटे खानदान से हो, एक्सेस से हो, नहीं एक्सेस से हो, आप कर ही नहीं पा रहे। मौके डिफरेंशिएट होते हैं। आपको बस ये जानना है कि फर्स्ट जनरेशन के लिए हमेशा डिफिकल्ट रहेगा। नाउ if the next generation that comes out of you, if God also bestows them with that talent, then that generation is lucky to be here. कि मेरे पापा बहुत अच्छे एक्टर थे, भगवान ने मुझे भी उसी कला से नवाजा। Now I can take from 100 to 200. अगर वो चीज नहीं हुई तो वो 100 का 0 भी, बाप की क्रेडिबिलिटी भी खा जाते हैं लोग। उसका बाप कितना अच्छा एक्टर हुआ करता था यार, देख नाम खराब। तो you have said it, I have said it, reminds us of a lot of people. तो हाँ, तो आराम नगर का स्केड्यूल लोगों का यही रहता है यार। कई लोग उठते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड है, सुबह से लेके रात तक एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं और 10-10 साल तक काम नहीं कर रहे। So आराम नगर is a place जहाँ पे आराम नगर इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के आप ऑफिसेज हैं, जिनके पास आप अप्रोच करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी कास्टिंग रिक्वायरमेंट है जिसमें हम फिट होते हो तो हमें प्लीज उसके लिए ऑडिशन किया जाए। एंड स्टूडियोज हैं जो हायर पे लेके भी कुछ वहाँ पे ऑडिशन कोऑर्डिनेटर्स। तो करेक्ट। तो वो जैसे जैसे आपको ऑडिशंस के लिए बुलाते जाते हैं, जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती है। तो कई लोग हैं जो बहुत डिसिप्लिन होने के बावजूद भी ना कुछ क्रैक नहीं कर पाते। कई ऐसे आलसी टट्टू हैं कि यार 12 घंटे सो रहे हैं, आज ऑडिशन के लिए बुलाया, बोले आज नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बोले आज थकान लग रही है, कल जाएंगे। आज मूड नहीं है। कल जाते हैं, ऑडिशन यूं क्रैक करते हैं और परसों निकल जाते हैं। तो आदमी सोचता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं गधा हूँ। नहीं, शायद उस किरदार के लिए आप उस टाइम जोन में है, वो उस टाइम जोन में है, कई चीजें उसके लिए अलाइंड है, कई चीजें उसके लिए हैं। आप उस चीज के लिए नहीं बने, आप उस चीज से बेहतर चीज के लिए बने, आप शायद किसी और अलग चीज के लिए बने। करेक्ट। तो ऐसा कुछ ही नहीं है कि अगर आप एक्टर हो तो जिम क्लास टुडे और मेडिटेशन क्लास टुडे और स्काई डाइविंग लेसन टुडे। You are an ordinary human being. I'm a very ordinary human. Like every actor for that matter, यार। इतना ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं होना चाहिए लोगों की, वो एक्टर है तो हर चीज में परफेक्ट ही होगा। जरूरत ही नहीं है। So sharing a flat with 2-3 roommates, how is it like girls they fight, you also fight?
You Yeah. also used to fight. आप हमारी लॉन्डो की ना आप प्यार भरी बातें भी सुनेंगे ना तो आपको ये लगता है ये नफरत करते हैं क्या एक दूसरे से, Like, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं होती जिसमें हम एक दूसरे के परिवार को ना याद करें, खास As in करके माँ गालियाँ? बहनों को। तो तो आपको क्या लगता है लड़कियां गाली नहीं देती? बिल्कुल देती होंगी, बट आई डोंट नो, आई हैव नेवर लिव्ड विद वुमेन, आई मीन यू नो एज फ्रेंड्स की लड़कियों के साथ रह रहा हूँ, आई हैव नेवर बीन इन अ लिव इन रिलेशनशिप्स। और I had bad experiences of a kleptomaniac roomie. इंसान ना वो आपका नसीब है, आपको कितने अच्छे लोग मिल जाएं, कितने बुरे लोग मिल जाएं। मैंने गरीब से गरीब आदमी को देखा है जो हजारों लाखों रुपए आपके वापस कर देगा, कितने कहानियां आती हैं। रिक्शे वाले ने लौटाया 10 लाख रुपए, है ना। आज की डेट में रिक्शे वाले को शायद सालों लग जाए 10 लाख कमाने में, और उसको एक पैग मिलता है, वो बोलता है मालिक आपका, भाई साहब आप मेरे रिक्शे में चढ़े थे। और बड़े से बड़े लोग हैं, प्रोड्यूसर है, मेरा पैसा खा के बैठे हैं 25 काफी। He'll not say that. 25 लाख. What कि happened? दे दो भाई, प्लीज दे दो। So, is your family understanding? Like, see, parents को लगता है कि कुछ कर नहीं रहा है, but the thing is कि it's not a सरकारी और a private नौकरी जिसमें हर महीने आपको सैलरी मिलती है. It's as good as like freelancing. At time तो freelancing भी नहीं बोल सकते क्योंकि कोई प्रोजेक्ट मिलता है, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, and जो प्रोजेक्ट मिलता है उससे आपको सस्टेन करना पड़ता है तब तक जब तक आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता. So in that period, you know, जब लो फेज होता है या आप वेट कर रहे हैं, एंग्शियस हो रहे हैं, so family support is there. I think I've been raised in a way where उन्होंने ना मेरी जड़ें बहुत मजबूत की हैं मेरे घर वालों ने, तो हर छोटी छोटी इनकन्वीनियंस पे मैं उनकी तरफ दौड़ता भी नहीं हूँ। आज कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि मैंने ऑडिशन अच्छा नहीं किया, अरे बेटा There are some mamas boy like that only. and good they have that access. तो एंड लकी फॉर मी इज कि मेरे घर वालों की मुझसे इतनी आशंका रही नहीं है, एंड आई डू नॉट मीन इट इन अ वे कि वेयर दे हैव थॉट कि ये किसी लायक नहीं है, बट फॉर मी फॉर देम अगर मैं एक अच्छा इंसान रहूं, अगर मैं अपने बड़ों की इज्जत करूं, मैं एक होपफुली एक लाइफ अपनी खुद बिल्ड कर पाऊं, फॉर देम दैट इज इनफ. दे डू नॉट वांट मी टू बिकम द मोस्ट रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दे डू नॉट वांट मी टू बिकम द मोस्ट फ्लैम्बॉयंट एक्टर इन द वर्ल्ड. They want me to have a life, have a home, have roof over my head, have food on my plate, people in my life that love me, that I love. For them that is success. For them कि यार ये अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है, खुश है. इससे ज्यादा हमें हमारे बच्चे के लिए कुछ चाहिए नहीं. उसके ऊपर मैं जो कर रहा हूँ वो बोनस है उनके लिए, और वो बोनस है मेरे लिए भी. तो वो कहीं पे ये आशंकाएं रही नहीं है कि आज मैंने ऑडिशन क्रैक नहीं किया तो मेरे चाचा को कितना बुरा लग रहा होगा यार, वो सोच रहे होंगे कि ये तो नालायक है, नाक कटा दी. मैं अगर किसी की जेब में हाथ नहीं डाल रहा हूँ, मैं किसी लड़की को छेड़ नहीं रहा हूँ, मैं किसी का पैसा चोरी नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए दैट इज वेरी 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 बिग अकम्पलिशमेंट कि हमने हमारे लड़के को ना वी रेज्ड हिम राइट. मुझसे कभी ऐसी ये आशंका नहीं रही है कि यार तुम पैसे घर भिजवाओ. यू नो कितने बच्चे होते हैं जिनको बहुत अर्ली कई बार अपने सपनों में कॉम्प्रोमाइज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि घर की जिम्मेदारी आ जाती है. मुझ पे कभी वो नहीं रही. क्या मैं लेना चाहता हूँ? बिल्कुल लेना चाहता That's a हूँ. blessing actually. हाँ, तो पर कभी रही नहीं. शायद कितने मैं अपने हर फेलियर उनको नहीं बताता ये सोच के कि यार मैं नहीं चाहता कि मेरी बुआ परेशान हो जाए. मैं नहीं चाहता कि मेरे फूफा जी सोचें कि ये खुश नहीं है क्या. That's an actor ना, you know how to mask. हाँ, तो बट एट द सेम टाइम मैं ये भी जानता हूँ कि उनकी भी रोजमर्रा की जिंदगी में ना बहुत दिक्कतें आ रही हैं कि ढाका साहब को शर्मा जी कहीं ना कहीं दिक्कत तो दे रहे हैं, पर ढाका साहब घर पे आके इसलिए नहीं बता रहे कि यार ठीक है मैं संभाल लूंगा शर्मा जी को, यार तुम लोग खुश रहो. So I think I come from a family where everybody is trying to look out for everybody else. So that way I'm lucky. But I feel you know kids जिनको बहुत ज्यादा spoon feeding होती है पेरेंट्स की तरफ से या कोई गॉडफादर जो spoon feed किए गए टैलेंट होते हैं वो एक्चुअली बहुत लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाते. Because spoon feeding कब तक चलेगा? A person who is like you know self-made, that guy or girl stands out. What do you say? I mean, whatever performances that I have seen, उसमें एक कॉमन फैक्टर तो रहा है. सेल्फ मेड लोगों का उनका संघर्ष भी बहुत लंबा रहा है, पर फिर यार वो किक आप कह रही थी ना, किक किस में मिलती है, वो किक उस चीज में मिलती है. उनकी जीत पे अपनी जीत लगती है. आज विक्रांत मैसी के सब फैन, पर वो क्या आज ही अच्छा एक्टर है? नहीं, हम तो तब से फॉलो कर रहे हैं उनको. शायद लोगों तक वो अब पहुंचे. जयदीप अहलावत, इरफान खान, यू ऑलवेज सीन दीज पीपल एंड दीज आर सेल्फ मेड पीपल. ये भी छोटे छोटे किरदार करते बट दे बिकम सो अनमिसेबल कि स्क्रीन में सामने कोई भी खड़ा हो
परेश रावल हो गए आपके, राजपाल यादव हो गए, मतलब मेन हीरो हीरोइनों की फिल्म है, पर लोग बाग देखते कि अरे यार वो वाली सीन लगाओ ना, उसमें वो परेश रावल और राजपाल यादव और आपके शक्ति कपूर, ये लोग। सो आई डोंट नो, यू नो, कि सेल्फ मेड है या वो काम के प्रति लगन है या वो डेडिकेशन है या वो जस्ट ईज ऑफ एग्जिस्टेंस है। आई थिंक व्हेन यू आर अ सेल्फ मेड मैन ना, बड़े रिलैक्स होते हो लाइफ एक्चुअली में। आप कुछ प्रिटेंड नहीं कर रहे होते हो, आप नेचुरली फ्लो करते हो, आपके बंधन बहुत कम होते हैं। क्योंकि आपने इतना देख लिया है, कर लिया कि हाँ, वो जो भी कारण है, या तो फिर आप घबराते ही नहीं किसी से, हाँ। और फिर तू हो, तू किसी का ही बेटा हो भाई, मैं तो ये हूँ, है ना। सो यू आर नॉट लिविंग अ प्रिटेंस लाइफ। बट डोंट यू फील दैट एक्स फैक्टर भी उन्हीं लोगों में सबसे ज्यादा होता है? नहीं तो आप कितना भी महंगा डिजाइनर आउटफिट पहन लीजिए, कितना भी एक्सपेंसिव एक्सेसरी ले लीजिए, बट अगर एक्स फैक्टर नहीं है तो इट्स लाइक डाउन टू द There is a song which I really tripped on, उसमें एक लाइन थी, ऊंचे से ऊंचा बंदा पॉटी पे बैठे नंगा। So I know. at the end of the day, I think we're just masking ourselves with bigger brands and oh, I'm better than you because I have this 2.5 lakh का bag. Okay, दीदी, maybe you are. But the I thing find is, it so funny when I go to parties and all, हाँ. women flaunting, मेरे पास ये है वो हाँ. अपना भी flaunting, पूरे खानदान का flaunting. You हाँ. feel like, you know, okay, हाँ. we are above this. and I This don't know if feeling of flaunting. if they are hiding their insecurities. Yeah, actually. I don't know if that is who they really want to be. I don't know if they're Actually, they're hiding the insecurities and JLE में. probably कि इतना मास्क कर दो, इतनी लेयर कर दो कि कोई आपको देख ही ना पाए, क्योंकि फिर आपकी वल्नरेबिलिटी जो है वो आपको खुद नहीं पसंद। मुझे मेरी वल्नरेबिलिटीज बहुत पसंद है। जैसे मैं स्ट्रेस हो जाता हूँ कि आज मुझे आपके पास इंटरव्यू में आना था, आई वाज लाइक क्या पहनूं, आई एम स्टिल अ बॉय। लोग कहते हैं कि भाई अब तो हीरो बन गया है यार, अब तो थोड़ा स्टाइल में घुमा कर, ये घुमा कर। आई एम मोस्ट कंफर्टेबल इन माय शॉर्ट्स एंड टी-शर्ट्स, इन माय स्पोर्ट शूज, तो आई लाइक टू बी इन दैट। मैं जिम से निकलता हूँ, मेरी कोई फोटो नहीं खींचता, मैं ना किसी को बुलाता हूँ कि आओ मेरी फोटो खींचो, जनित में जा रही एक्टर सीन वर्किंग आउट, मुझे नहीं चाहिए वो। What do you work out like? You like yoga or you do the proper gym workout? So Trainer wala? I am a national gold medalist in karate. Are you? I'm a black belt dude. I am a black belt. All I'm a right. black belt Which second style? dan. Shotokan. Shotoryu is my style. Oh, Shitoryu is. I Shitoryu. wanted to learn Shitoryu, but I had the opportunity to learn Shotokan. So, in fact, that's the first time I came to Bombay for my nationals. For a tournament? You asked me ना आपको एक्टर कब बनना, मेरे को बचपन से एक्टर बनना था। अच्छा। हमको गेटवे मुंबई दर्शन की बस चलती थी, तो जो जीता और जो नहीं भी जीता सब मुंबई दर्शन की बस में घूमने निकले और हमको गेटवे तक लेकर आए। लाइक ये ताज है, ये है, ये समंदर है। उस दिन गेटवे पे शूटिंग चल रही थी, आधे घंटे का स्टॉप था, मैं ना गेटवे के बाहर बस खड़ा रहा और दे कॉर्डन ऑफ द एरिया लॉक कर देते हैं। मुझे सिर्फ एक स्किमर दिख रहा था बहुत बड़ा, मैंने 15 मिनट खड़े होकर सिर्फ स्किमर को देखा है कि ऐसे शूटिंग होती है। And I was in And you wanted to be there? I really wanted to be there. I really wanted to explore. So I think that फिल्म में हीरो को गोली लगती थी, अगले दिन मैं लंगड़ा रहा होता था। इतना फिल्मी? हाँ, लोग सोच रहे हैं पागल हो गया क्या, सोच रहे सच में चोट लगी, कैसे लगी? वो राइट लेग में गोली लगी। तो स्कूल टाइम पे थिएटर या कुछ ड्रामा? स्कूल में थिएटर था नहीं, 7th स्टैंडर्ड में था तब थिएटर आया, पर तब तक मैं कराटे में बहुत बचपन से कराटे करता आ रहा था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लीव कराटे एंड गेट इनटू थिएटर। एंड स्पोर्ट्स के अलावा एनी अदर करिकुलर एक्टिविटी? प्रीटी मच एवरीथिंग। टीचर्स डे है मैं नाच रहा हूँ, चिल्ड्रंस डे है मैं फिर नाच रहा हूँ। तो मतलब एक्स फैक्टर था पहले से? अब क्या होता है एक्स फैक्टर? आई जस्ट वांट यू टू टेल आवर ऑडियंस कि एक्स फैक्टर क्या है आपके अकॉर्डिंग। हाँ प्लीज आप बताइए, ये आई थिंक नीचे कमेंट्स में लिखिए आपके अकॉर्डिंग एक्स फैक्टर क्या है और क्या आपको इनमें एक्स फैक्टर दिखता है, फिर ये भी आपको बताएंगे कि इनके अकॉर्डिंग एक्स फैक्टर क्या है। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स अ गुड एक्सरसाइज। प्लीज टेल अस व्हाट इज एन एक्स फैक्टर। या आई आल्सो वांट टू नो दैट। मैं मेरे दोस्त को बोला एक्स फैक्टर क्या, बोले मैं मेरी एक्स की बातें ही नहीं करता अब। मैं भी भूल गया, तू भी भूल जा। बट एक्स फैक्टर आपके अकॉर्डिंग क्या है? पता नहीं, आई थिंक दोनों चीजें एक्स फैक्टर हो सकती हैं। एक जो आपको क्राउड से सेपरेट करे, एक जो आपको क्राउड का हिस्सा बना दे कि यार उससे पहली बार मिलो ऐसा लगता है कि हमारा ही बंदा ये अपना बंदा है ना। और यार अपनापन होना चाहिए, वो एक एक्स फैक्टर हो गया। या उसको देखो यार, उसको देखो तो ऐसी एनर्जी है, पास जाने में भी डर लगता है, घबरा जाती हूँ। तो नाउ दीज आर वेरी पोलर ऑपोजिट थिंग्स। एक आदमी के साथ ऐसा लग रहा है ये तो हमारा भाई टाइप है, दोस्त टाइप है, इसके साथ शायद बचपन से घुरे हैं, ऐसा लगा ही नहीं पहली बार मिले।
एक आदमी ही could probably be so nice but you still feel कि यार ये तो बड़ा inaccessible सा बंदा है. Both are X factors. मैं कैसे समझती थी पता है बचपन से एक्स फैक्टर को, लाइक यू सी द कैलेंडर्स हमारे जो घर पे रहते थे ना, वो तारीख वाले जो कैलेंडर्स लगे रहते थे उसमें भगवान का फोटो रहता था. तो जो भगवान होंगे उनके पीछे से किरणें निकल रही हैं. Correct. That's the aura. Correct. That's aura. X factor. That's the energy you carry. That's how I understood X factor कि इनका जो aura है, जो एनर्जी इनकी है, वो इनका X factor है, इसीलिए स्टैंड आउट कर रहे हैं. Correct. फिर उनके आगे जो लोग उनकी भक्त वगैरह रहते थे, उनकी कोई aura किरणें नहीं. That's such a beautiful way of मुझे लगता है कि जो हमारे गॉड्स होते थे उनके अंदर कुछ तो एक्स फैक्टर, कुछ तो ऑरा, कुछ डिवाइन, कुछ तो होता था जिससे आप इतना रिलेट करते थे और इतना मानते थे. और आज भी जो हीरो है जिसकी टिकट खरीद के आप फिल्म देखने जाते हैं, उसमें अगर एक्स फैक्टर नहीं है तो आप क्यों जाओगे? उसमें एक्स फैक्टर जैसे कि अपना भी हमें ठंडा खाना नहीं पसंद, हम ठंडे हीरो कैसे देख सकते हैं? एक्चुअली सो आई फील एक्स फैक्टर हीरो चाहे हीरोइन, बिल्कुल मेरे लिए वो एक्स फैक्टर है. Same. I absolutely agree. That's a very legit and a very smart observation. हाँ, and also when I see crowd में, जैसे it's not about looks or features or what you're wearing, कितना महंगा पहना है, कितना सस्ता पहना है. A female is coming and she is so vibrant in energy and you feel like going and approaching her, you know, you feel कि यार इसकी इस energy से थोड़ा सा शेयर मुझे भी मिल कुछ तो मिल जाए, आज मेरा दिन बन जाए, मेरा दिन बुरा है, मैं भी बहती गंगा में हाथ ठंडे कर लूं. हाँ, तो वो तो उसका वो जो ऑरा है, उसका जो एक्स फैक्टर है, उसकी जो एनर्जी है मुझे अट्रैक्ट कर रही है. एंड आई फील दैट्स द एक्स फैक्टर. लाइक वाइज यू नो, एक कोई बंदा आ रहा है, उससे मैं बात करूं, उसके अंदर अगर वो एक्स फैक्टर है तो मुझे लगता है कि वो जो मुझे वो किरणें दिखने लग जाती है जो भगवान जी के कैलेंडर में पीछे दिखती हैं. आई कैन फील एंड कनेक्ट टू दैट एनर्जी. तो आपको मेरे अंदर कौन सी किरणें दिखी? व्हाट वाज द एक्स फैक्टर? बट ऑल्सो जिनके अंदर कुछ नहीं होता ना, डेड होते हैं, वो भी मुझे दिख जाते हैं, वो भी मुझे फील हो जाता है. मैं साइड से चली जाती हूँ कि कहीं मेरी एनर्जी स्कूप ना कर ले या मुझे ड्रेन ना कर ले. देख रहे हो, उसने देखो उसकी एनर्जी फ्लो कर रही है, थोड़ी मैं भी वहां पहुंच जाती हूँ. और किसी और को जरूरत हुई तो समंदर में से 2 बूंदे कम हो जाए कुछ नहीं होगा, लेकिन नदी बेचारी में से यार क्या बात है, क्या बात है. अरे शायरी भी करती हैं आप, क्या बात है, क्या बात है. नदी और झील में से थोड़ा कम नहीं होना चाहिए, समंदर में से हो जाए चलेगा. अच्छा, तो मैं नदी और झील मानती हूँ. आप? मैं खुद को क्या मानता हूँ? वो बहती गंगा है जिसपे लोग हाथ धो ले. मैं तो घर वाले गधा बोलते हो तो मैं तो गधा भी मान लेता हूँ. घर वाले राजा बेटा बोलते हो तो मैं राजा बेटा भी मान लेता हूँ. On that note, we'll conclude it here. It was lovely talking to Anuj Singh Dhaka, who's not from Dhaka. He is not from Dhaka, but he made me believe that's an actor, and then he came back to saying that he's a Jat. Yeah, I am. तो अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो और आपको कुछ कमेंट करने का मन हो तो आप प्लीज ना रोकें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस शो को, अड्डा अनफिल्टर्ड को. हमें प्यार दें ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग लोगों से आपकी मुलाकात कराएं, बहुत सारी बातें करें, बहुत सारी ज्ञान की बातें ना करते हुए, कैजुअल टॉक करते हुए आपके साथ बहुत सारी, हाँ, उन्हें अच्छी कॉफी पिलाएं, उन्हें अच्छा खाना खिलाएं, उनसे प्यारी बातें करें. थैंक यू सो मच. इट्स अ गुड टाइम. तो हमारे ऑडियंस को कुछ मैसेज और आपके ऑडियंस को कुछ मैसेज. I don't know what to say, but I really hope that you really enjoyed this conversation because I really did. Thank you for having me. Thank you for coming. This is probably one of my it might not come across like that, but I'm a little bit of a shy human being, little introverted as well. So the very fact that I had met you that day and I felt, because आपने मेरे बारे में इतनी बातें कही हैं, so I would really want to say कि I also felt very comfortable around you. And मेरे मानना है कि जितना जरूरी शायद स्टैंड आउट करना है, उससे ज्यादा जरूरी लोगों को अपने आसपास कंफर्टेबल फील कराना, एनर्जीज एक्सचेंज करना. हाँ, तो the very fact that I was so many people were comfortable around you, आप उथल पुथल नहीं हो रहा था कुछ, made me feel कि you're somebody I can talk to. Hence we spoke, and then that led to us being here. So I hope you had a good time talking with me. I really had a good time talking with you. And if you really enjoyed watching this, please like this video, subscribe to her channel, and share it to your friends who might also enjoy watching this. Yes. Yeah. तो ये बंदा बहुत बड़ा बनेगा, आप देख लो आज का इंटरव्यू, फिर आपको पता चलेगा. Best wishes to you. Thank you. Bye bye.